Okay. So we come on the fifth day of Navratri, and Navratris we have always been hearing these stories, but we want to understand more deeper how each and every meaning of the story is actually unfolding in our real life. So embrace the divine within. The divine is inside us itself. We have just not given it a exposure, or we have not explored it. So when we start exploring via the story, that what is that she's trying to tell us and reflect in our story on a deeper level, that is when we start to understand that how we can really go more deeper in our life and do auto correction on small things. So Neelam has written, I'm really liking it, missed 2 days, but able to catch up later. Thanks for the recording. Okay. Thank you. So recordings are there on YouTube even afterwards. If you want to do only the meditation, you can only start the meditation and you can do. Okay. So to start with, first I want to do a prayer. Ki I'm with all my heart and with all my bhakti, gratitude to the mother, to the entire universe, to all my ancestors, all gurus and all gods. Because of that, I'm able to share this wisdom. That wisdom is shared by them, and I am just a vehicle via which I'm able to share. So with all my heart and my pure bhakti, I am like starting the class today. Okay. Now let us come to the day 1, 2, 3, 4 recap. So day one, हमने समझा everything is energy. Everything in this universe is energy. Things which we can't see, also there is energy. It is just that we are not seeing. Like how in trees they are growing, that is energy. When we do any work, we need this energy. Without energy, nothing moves. So this is that Param Shakti that we are praying to. And imagine that Param Shakti we are connecting to, and we are praying and we are receiving that blessing during this Navratri. So because when with all your heart, when you start praying to her, there is an amazing clarity and amazing purity that happens in your mind, body and spirit. So the first day from her story, Ma Putri tells you, you need to become aware of the emotions that you have, and you're getting pulled in all the directions, and आपको अपनी जो heavy programming आपके mind में हो गया और आपकी emotions आप जो deal नहीं कर पा रहे हो, तो start auditing your life. तो जब आप अपनी लाइफ को ऑडिट करते हो, देन इज द एक्सेप्टेंस, एंड देन यू डू अवे विद द स्पेस, अनवांटेड स्पेस दैट इज लाइक फॉर एग्जांपल हमारे घर में हम लोग अनवांटेड चीजें कई बार एक्स्ट्रा हो जाती है, तो जब तक आप उसको निकाल के क्लीन नहीं करते हो, तब तक वो अच्छी चीजें हमारे घर में स्पेस नहीं बन पाता. तो सेम इज अवर लाइफ. ओके. तो एलिमिनेशन करके हम एक्सप्लोर करते एंड हम एक्सपैंड कर पाते. देन सेकेंड डे वी हर्ड कि माँ ब्रह्मचारी, एनीथिंग विद ऑल योर हार्ट, with all your bhakti, with all your dedication, if you go towards it, towards your passion, you will definitely get it. मतलब उसको आपको सृष्टि रोक ही नहीं सकते. मतलब सृष्टि has to give you, because that is a law of nature. Okay. Then the third day we understood that the goddess of the third day is telling you, do away with your ego, because our ego is stopping us. हमें वो आगे ही बढ़ने नहीं दे रहा है. And we have created that illusion around our body, and because of that we are not able to grow. So she's saying, do away with your ego, shine your inner beauty. Your beauty should shine from within. Your soul level, it should shine. Your external is just a projection. Then she says, do away with friction. ये जो हम इतने स्टोरीज अपने माइंड में बनाते जा रहे, खिचड़ी पकाते जा रहे, उसको हमें डू अवे करना है. ओके. तो देन शी टेल्स यू, डू अवे विद इल्यूशन. जो कई बार हम लोग इल्यूशन अपने लाइफ में हम बनाते, उसको you have to do away. Now on the fourth day we understood माँ खुशमंदा is saying कि मेरी एक स्माइल से मैंने पूरी सृष्टि बनाई.
पूरा यूनिवर्स, पूरा बाहुमंडल, पूरे स्टार्स, पूरे सन, सब कुछ। तो ब्रिंग इन दैट हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ब्रिंग इन दैट स्माइल। जब आप कभी भी किसी को एक स्माइल से आप मिलते हो, आप वो एक लव से क्रिएट करते हो, तो आपके कनेक्शन बनते हैं। तो राइज इन लव एंड सी ब्यूटी इन एवरीथिंग। छोटी सी छोटी चीज में भी आप ब्यूटी देखने की कोशिश करोगे तो कुछ भी आपको बुरा नहीं लगेगा, हर चीज ब्यूटीफुल लगेगा। देन शी टेल्स यू बी हियर एंड नाउ, अभी यहाँ पे रहो, प्रेजेंट रहो, बिकॉज मिरेकल्स तो प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। जब आप फ्यूचर की अपेक्षा कर रहे हो तो आप फ्यूचर की ही जोन में रह रहे हो, और जब वो फ्यूचर आपका प्रेजेंट बन जाता है, बिकॉज आपकी हैबिट ऐसे बन जाती है, आप वापस से फ्यूचर में ही रहते हो, तो यू आर नेवर एंजॉइंग योर प्रेजेंट। So you have to be present, enjoy your present moment, and glow beautifully naturally. Okay. So now I go to the fifth day story, and the fifth day story is very beautiful. है माँ स्कंद माता। So the story goes like this कि लॉर्ड शिवा और पार्वती के जो फर्स्ट बेटे थे, फर्स्ट सन जो थे, उनका नाम था कार्तिकेय। तो उनको स्कंदा बुलाया जाता था। तो बेसिकली कार्तिकी की जो मदर है, तो मतलब इसके लिए वो नाम उनका वैसे पड़ा। तो आपने पहले स्टोरी में सुना कि माँ सती इमोर्टलाइज्ड हो जाती है, फिर उसमें शिव जी बहुत क्रेजी हो जाते हैं, बिल्कुल डिवेस्टेटेड हो जाते हैं। उनको समझता ही नहीं कि मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूं, तो वो पूरे वर्ल्डली अफेयर को गिव अप कर देते। उतने में क्या होता है, एक डेमन होता है जिसका नाम होता है तारकासुर। वो बहुत सारे भगवानों को उसने बहुत तंग और परेशान किया होता है। तो सारे भगवान बहुत तंग और परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल में जाए, पता ही नहीं है कैसे। और उसके पास एक आशीर्वाद होता है, कोई गुण होता है कि उसको खाली केवल शिव जी का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, जो उसका बेटा बच्चा होगा, वो ही उसका वध कर सकता। तो बेसिकली मतलब कि शिव जी के तभी तक कोई सुपुत्र नहीं थे, तो ऑब्वियसली कोई उनका वध ही नहीं कर पा रहा था करके। तो उन्होंने पूरे गॉड्स को बहुत तंग, परेशान और वो करे जा रहे थे। उतने में क्या होता है, जिसे हमने फर्स्ट स्टोरी में सुना, वो मतलब मैंने आपको जिसे बताया, तो सेकंड स्टोरी में माँ ब्रह्मचारिणी को नारद मुनि आते हैं और बोलते हैं आप फास्ट करो, कड़ी तपस्या करो, आपको अवश्य ब्रह्मा जी आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी शिव जी के साथ में शादी हो जाएगी। तो सेकंड में उनकी शादी हो जाती। थर्ड में बेसिकली क्या होता है, जब उनकी पूरी तरह से उनकी शादी और उनकी सेलिब्रेशन होने लगती है। तो थर्ड में उनकी शादी के बाद में फोर्थ क्या है कि वो बहुत खुश, बहुत हैप्पी, बहुत ही एक हैप्पी स्टेट में स्माइलिंग गॉडेस, पूरे मतलब शादी के बाद में जैसे लव, हैप्पीनेस, पूरा जो प्यार होता है वो आप मतलब जॉय, एक्साइटमेंट आपके लाइफ पे आ पाए। तो फिफ्थ अवतार में वो आप देखना, शादी के बाद में ही तो आप मल्टीप्लाई करते हो। तो फिफ्थ अवतार में वो मल्टीप्लाई करते हैं और उनको एक सुपुत्र होता है ब्लेसिंग से, और वो अग्नि भगवान की उनकी ब्लेसिंग से उनको वो एक सुपुत्र का ब्लेसिंग मिलता है। और वो इतनी हीट होती है उसमें, इतनी हीट होती है वो एक बीज में कि वो कोई उसको समा ही नहीं पाता है। तो माँ पार्वती गंगा में लेके जाती है और बोलती कि गंगा जी प्लीज इसको अपने पास रखो, बहुत ये गर्म है और ये कहीं भी मैं शांत नहीं कर पा रही हूँ। तो माँ गंगा भी अपने पास रखती है और वो रियलाइज करती है वो भी नहीं रख सकती है। तो वो बोलती है ये मैं भी नहीं रख सक रही हूँ, आपको एक वन में जाना पड़ेगा, फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा। और उधर 6 सिस्टर्स हैं जिनका नाम है कृतिका, जिनको बोला गया है, उनके पास आपको रखना पड़ेगा। और वो इनको सही वैल्यू, सही तरीका डिफेंड करने के लिए या लड़ाई के लिए जिससे तैयार होना है, प्रिपरेशन करना है, या पढ़ाई, एजुकेशन बोलो आप, तो वो पूरी की पूरी वो ये 6 सिस्टर मिलके उनको ये ज्ञान देंगी करके। तो माँ पार्वती उधर लेके जाती है कृतिका से, ये 6 सिस्टर्स के वहां पे रखती है। और कार्तिकेय वहां पे बड़े होते हैं। और जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको कमांडर इन चीफ
पूरे भगवान के सारों का कमांडर इन चीफ उनको बनाया जाता है। तो जैसे तो जब वो कमांडर इन चीफ बन जाते हैं पूरे भगवान के, तो नारद मुनि जी आते हैं, माँ पार्वती जी से रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये वाला असुरा जो है इनको वध करना है, इसको डिफीट करना है, तो आपको कार्तिकेय को आप भेज सकते हो क्या कर। तो फिर कार्तिकेय जाते हैं और ये असुरा जो है उनका वध करती है। ओके, तो ये तो हमारी है कहानी। अभी ये कहानी से हमारी लाइफ में कैसे ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, ऐसा एक चीज हमारी लाइफ में जिसमें इतनी हीट होती है, जिसमें इतनी गर्मी होती है, जिससे हर रिलेशन बिगड़ सकते हैं, हर रिलेशन में दरार पड़ते हैं, हर रिलेशन खराब होते हैं। ऐसी क्या एक चीज है, खाली हमारे रिलेशन ही, किसी के भी साथ, हर कोई भी, हर इंसान के लाइफ में वो एक चीज ऐसे आपके लाइफ में क्या है? आपकी वाणी। तो जब आपकी जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आप बोलते हो, जिस तरह से आपके शब्द निकलते, अगर आपने अपनी वाणी को ही करेक्ट कर लिया, अगर आपने आपके वॉइस को ही करेक्ट कर दिया कि आप जब शब्द बोल रहे हो वो सही शब्द बोल रहे हो, कहीं ऐसे शब्द नहीं बोल रहे हो जहाँ पे किसी की ऊर्जा को आप नीचे डिस्ट्रॉय कर रहे हो या किसी की पर्सनैलिटी को बिल्कुल क्रश कर रहे हो। ऐसे शब्द जहां पे आपने अपनी बात भी बोल दी, सामने वाली की बात भी सुन ली, मगर आपने एक ब्रिज बनाया, ना कि आपने वो रिलेशन को तोड़ा। तो जब आप अपने वर्ड्स को चेंज करने लगते हो, आप ऑडिट करने लगते हो अपनी ईच एंड एवरी वर्ड। तो हम अभी जैसे मैंने आपको बताया हर चीज में ऊर्जा है ना, तो हमारे शब्द में भी ऊर्जा है। हमारे ईच एंड एवरी शब्द जो आप बोलते हो वो मल्टीप्लाई करके हमारे पास, हमारी लाइफ में ही वो वापस आ रहा होता है। तो बेसिकली आप जब भी कोई शब्द किसी के लिए भी कभी बोल रहे हो, तो विजुअलाइज करो आपके सामने एक मिरर है। तो क्या आप वो शब्द ऐसे बोलोगे क्योंकि आपको पता है वो रिवर्स आपके पास आने वाला है, तो अब ऑटोमेटिकली ऐसे शब्द आपकी लाइफ में आप ऑटो करेक्शन मोड में चले जाओगे, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सामने वाला कई बार बहुत सारी चीजें बोलता है, कुछ कठोर बोलता है, कुछ अच्छा बोलता है, कुछ ठीक नहीं बोलता। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो अपनी सोच विचार या उसकी परिस्थिति, उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से वो वैसे बोल रहा है, मगर हम अपनी परसेप्शन, अपने नजरिए से ही चीजें देखते हैं, हम दूसरी के नजरिए से कभी चीज देखने की कोशिश ही नहीं करते। तो जब हम गहराई में देखना चालू करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तब हमारे शब्द ऑटो करेक्शन में आना चालू हो जाते हैं और हमें समझते हैं कि हो सकता है सामने वाला की अपनी अलग पर्सपेक्टिव है, वो भी शायद कोई कठिनाई में गुजर रहा होगा, इसलिए उसने ऐसे शब्द बोल दिए होंगे, उसका ऐसा कोई मीनिंग नहीं होगा जो वो बोलने की कोशिश भी कर रहा है। तो हम लोगों को जज करने लगते हैं कि उन्होंने जो वर्ड्स बोले, अच्छा उसने ऐसे बोला तो उसका मतलब ये होगा, तो हमारा जजमेंट इंस्टेंटली बाहर आ जाता है। जबकि हमें ये समझना है कि हो सकता है कि वो अपनी परिस्थिति में समझते हुए वो अपनी तरह से बोल रहा है। तो आप नेचर में देखो, एक जो पेड़ होता है, क्या वो कभी सोचता है मेरी शाखा अलग है, मेरी ट्रंक अलग है, मेरे लीव्स अलग है? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जानता है कि वो जो भी है वो पूरा पार्ट ऑफ वन है, राइट। हम सब कनेक्टेड है, हम सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। और हम जब रॉन्ग भाव, हमारे अंदर से रॉन्ग भाव निकलता है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने अंदर को एक शेल के अंदर हम ले जाते हैं। और बिकॉज हम वो शेल के अंदर चले जाते हैं, तो हमारे अंदर तो कोई फ्रीडम ही नहीं होती। हम नई चैनल्स, हम वो ब्लेसिंग या हमारे लाइफ में हार्मोनी या हमारी लाइफ में एक दूसरे को हम जोड़ सके, वो हम चीजें हम नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी हर इंसान की लाइफ की एक स्टोरी है, मेरी लाइफ एक स्टोरी है, आपकी लाइफ एक स्टोरी है, हम ये जो कथा सुन रहे हैं इसकी एक स्टोरी है। और ये कथा से ही हम सीखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा ओल्ड एक्सपीरियंस जो पास्ट हो चुका है, उसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती जाती है ना।
मगर वो पास्ट एक्सपीरियंस से हमारा आज को हमें, हमारी आज की अच्छाइयों से हमें चुराना नहीं है। हमें अपनी आज की अच्छाइयों को लेते हुए हमें लोगों के साथ जुड़ना है, लोगों के साथ मिलना है, लोगों के साथ सही शब्द बोलने हैं। हमें ऐसे शब्द बोलने हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ में पीस या लव शेयर कर सके, ना कि हम एक दूसरे को हम ब्रेक करें, है ना। तो हर दिन हमारे लाइफ में हमें दो चीज मिलती है। पहला है चांस मिलता है, हमें हर दिन एक चांस आता है हमारी लाइफ में। तो और हमारे पास चॉइस होती है, क्या हम वो सिचुएशन हम कैसे बिहेव करना चाहते हैं, हम क्या बोलना चाहते हैं, या हम क्या करना चाहते हैं। हर क्षण आप चॉइस कर रहे हो अपने लाइफ में आपको क्या करना है। अगर आप कोई डिसाइड नहीं भी कर रहे हो तो भी वो एक डिसीजन है आपके लाइफ में। तो अपने हर एक दिन में, हर एक सेकंड में, उसमें जब आप वैल्यू ऐड करते जाओगे, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि समय तो वही है हम सबके पास, मगर अगर हर सेकंड में आप उसमें वैल्यू ऐड करते जाओगे तो वही समय आपका 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली लाइफ में हर चीज रिस्की है। बिजनेस करना रिस्की है, मैरिज करना रिस्की है, बच्चे बड़ा करना रिस्की है, इन्वेस्टिंग करना रिस्की है। तो रिस्की तो एक नॉर्मल हमारा वे ऑफ लाइफ है, मगर वो रिस्की को लेके हमें रोकना नहीं है। हमें ऐसे शब्द यूज करते हुए हमें आगे बढ़ना है, अपने फियर जोन, अपना डर, ये सब को बाहर निकालते हुए हमें ऐसे द्वार से अपने शब्द निकालने हैं। 3 क्वेश्चंस आपको हमेशा अपने आप को पूछना। पहला, क्या ये सत्य है जो मैं बोल रही हूँ। दूसरा, क्या ये नेसेसरी है जो मैं बोल रही हूँ। थर्ड, क्या ये काइंड है जो मैं किसको बोल रही हूँ, क्या ये काइंड है। कहीं ऐसे तो नहीं कि मैंने ऐसे शब्द बोल दिए कि उनको बहुत बुरा लगा, वो डिस्ट्रॉय हो गए और उनका इमेज ही खराब हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको गॉड का मोबाइल नंबर मिल जाता, आप कैसे उनसे बात करोगे। जस्ट आप अपने आप को इवेल्युएट करो, आप कैसे बात करोगे। क्या आप सेम जैसे जिसको आप पसंद नहीं करते हो आप वैसे ही बात करोगे। नहीं, आप बहुत कंट्रोल और सोच समझ के आपके वर्ड्स निकलेंगे। तो बेसिकली हम हर रोज अपनी लाइफ की कथा हम अपने हाथों से लिख रहे हैं, अपने शब्दों से हम लिख रहे हैं। तो जब आप इतने वाइज और इतनी अवेयरनेस आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स आपके जैसे हम वर्ड्स हमारे, आप देखो 32 बार्स है हमारे ना, जब हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते 32 बार्स के अंदर है। और वो टंग से हम वॉइस निकाल रहे, गले से हम निकाल रहे, मगर फिर भी ये कभी भूलता नहीं है किसी को हर्ट करना या किसी को मतलब किसी को डंक मारने से रुकता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी वर्ड्स को ऑडिट करते जाना है। तो स्कंद माता आपको ये बोल रही है कि बच्चे ऑडिट करो अपने वर्ड्स। अगर आपके वर्ड्स आपके लिए काम नहीं आ रहे हैं तो आपको चेंज करना है। अच्छा, अभी आप देखो हमारे लाइफ में डिक्शनरी तो इतनी मोटी है, मगर हम डिक्शनरी से हमने कुछ चुने मुने ही हमने वर्ड्स लिए, और हमने वो वर्ड्स हमारे माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस में कैसा आया है, जो हमने एनवायरमेंट में देखा है या हमने सुना है या हमने पढ़ा है, बस उतना ही। हमने उसके बाद में हमने अपनी वोकैबुलरी ग्रो करने की कोशिश ही नहीं की है। अच्छा, आप देखो, आप जब अकेले अपने साथ बैठते हो आप अपने आप से कैसे बात करो। क्या आपके वर्ड्स आपके लिए एनकरेजिंग है, क्या आपके वर्ड्स आपकी ऊर्जा को नीचे खींच रहा है। तो आपको अपने आप को ऑडिट करना है, कौन से वर्ड्स कैसे आप बोल रहे हो, दैट इज वन। टू इज कि आपको अपना परसेप्शन चेक करना है। क्या आप अपनी बीती चीजों के वजह से आप देखने का नजरिया आपका वैसे है, या आप फ्रेश नजरिया से आप अपना पर्सपेक्टिव देखते हो। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या आपके वर्ड्स किसी का पर्सोना या पर्सनालिटी या अस्तित्व को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर वो डिस्ट्रॉय कर रहा है तो आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जहाँ पे आप अपनी बात भी बोल दो, सामने वाले की बात भी आप सुन लो,
और वो आपने एक ब्रिज क्रिएट किया है और बहुत आराम से आपने बात करी है। तो बेसिकली कई सारे जन बोलते हैं अरे गुस्से में तो बहुत सारी बातें निकल जाती है, बहुत अनवांटेड बातें हमारे अंदर से निकल जाती है। मगर आप जब अपनी स्वयं की ऑटो चेक मोड में जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आप करेक्शन लाओगे। अच्छा अभी आप देखो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बिजनेस डील के लिए जा रहे हो और कोई आपके पास आया है और वो ही वांट्स टू सेल समथिंग। अगर वो बिल्कुल ऐसे रूडली आपसे बात कर रहा है, बहुत स्ट्रिक्टली बात कर रहा है, क्या आप उसकी बात सुनना पसंद करोगे? नहीं करना पसंद करोगे। तो जब आप बड़े हंसते हुए, बड़े प्यार से, बड़े लविंग तरीके से आप ऐसे अच्छे शब्द आप यूज करोगे, ऑटोमेटिकली आपका सुनने का भी मन करेगा और आपकी डील भी बड़ी इजीली आसानी आपकी हो जाती है। ओके, तो बेसिकली हमारे जो वॉइस है वो उसके 4 पैरामीटर्स है, 4 फैक्टर्स है कि हमारी पिच कैसी थी, हमारी पिच क्या स्मूथ थी या रफ थी, हमारा पेस कैसा था, क्या वो स्पीड में था या स्लो में था, क्या हमने बात करते समय पॉज करा बीच में, तो ब्रेक लिया या नहीं लिया। कई सारे जन आप अपने लाइफ में ऐसे पाओगे जो खाली लोगों की बातें सुनते नहीं, खाली बोलते ही रहते। ओके, और चौथा है कि आपका टोन कैसा था, मतलब आप वो समय में आपका कैसा इमोशन था, उसकी बेसिस में आपका टोन डिसाइड करेगा। कई बार आप देखोगे आप बड़े एक्साइटेड हो, आप बहुत उत्साह हो, आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो, तो आपका टोन आप देखना ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। जब आपकी उत्साह नीचे होता है तो ऑटोमेटिकली आप सैड होते हो तो आपकी आवाज नीचे हो जाती है। आप फॉर एग्जाम्पल कोई आपके पास सामने आता है और वो आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और वो आपको कुछ बोल रहा है और आपने बोला क्या हुआ, आपने बड़े आराम से पूछा है ना, तो सामने वाला भी आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल आप बैड मूड में बैठे हुए हो और सामने वाला आके आपको कुछ ना कुछ बोलना चालू करता है, तो आप क्या बोलोगे, क्या है, आपका आपका टोन कैसा हो जाएगा, पिच कैसा हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, राइट। तो यही सेम सेंटेंस, सेम वर्ड, मगर जिस तरह से आपने प्रेजेंट किया है वो मेक्स दी डिफरेंस इन लाइफ। ओके, तो बेसिकली माँ स्कंद माता आपको बोलती है बच्चे सेलेक्ट करो, अच्छे शब्द सेलेक्ट करो अपने लाइफ में और प्यार से सॉफ्टली बोलने की नियम लाओ अपने लाइफ में। सिंपल वर्ड्स होने चाहिए, डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कोई कोई जन बहुत हाई फंडा वर्ड्स यूज करते हैं जो लोगों को बिल्कुल ही नहीं समझ पड़ता। तो आपको समझना है बड़ी सिंपल, बहुत सॉफ्टली, प्यार से, स्नेह से आपको बात करना है। ऐसी वर्ड्स की कहीं किसको हर्ट तो नहीं कर रहा, वो सोशेबल है, मतलब सोशेबल मतलब कि आप वातावरण में हो और आपने बात करी मगर वो वातावरण में आपने जो बोला किसको हर्ट नहीं किया, बिल्कुल हार्मोनी में रहा हो। और आप जब अपनी शब्द आप बोल रहे हो या सेंटेंस बोल रहे हो और आपको लग रहा है वो थोड़ा डिफिकल्ट है सामने वाले को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आप बड़े स्माइल करते हुए, हंसते हुए वो बात को हंसते हंसते आप बात भी बोल सकते हो और बहुत सेफ रहेगा ये आपके खुद के लिए। और ये बहुत सेटिस्फाइंग, आपके रिलेशनशिप बहुत सेटिस्फाइंग और बहुत ही अमेजिंग, मैं बोल रही ना, रिलेशन को हार्मोनी में रखना एक बहुत बड़ा उसमें खुद भी एक स्किल है। तो देखो डिफिकल्टीज तो हर इंसान के लाइफ में आती है, मगर उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो चॉइस हमारे पास। और जब जब माँ आपको ये 9 डेज में बोल रही है, पहले उन्होंने बोला आपकी थॉट लेवल में, आप इमोशन लेवल में क्लैरिटी लेके आओ, फिर आप ये चेक करो कि क्या कहीं आप एडिक्टेड तो नहीं हो, कि आपको कोई एडमायर कर रहा है तो आप उसी में आपको अच्छा लग रहा है या कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है। तो मतलब हम ये 5 केंद्र जो है हमारे, जो इंफॉर्मेशन ला रहा है हमारे बॉडी के अंदर, मतलब आई से आप जो देख रहे हो, हर चीज को आपको करेक्शन करना है। तो जैसे मैंने बताया कि वॉइस जैसे हम बोल पा रहे, तो हमें इधर ऑटो करेक्शन करना है। जब हम इधर ऑटो करेक्शन करेंगे, मैं ये अपने बहुत सारे क्लासेस में सबको सिखाती हूँ कि आपने अपने वर्ड्स अगर चेंज कर दिए तो आपकी पूरी लाइफ की डेस्टिनी चेंज हुई है। खाली आपके वर्ड्स आपको चेंज करने, और ये वर्ड्स मतलब बोलने वाले वर्ड्स की बात नहीं कर रही मैं,
आपके थॉट लेवल के वर्ड्स, आप जब अकेले बैठे हो, आप अकेले अपने आप से क्या बात कर रहे हो, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक इंसान सिंस द डे वो बॉर्न होता है और टिल द डे ही डाई, सबसे ज्यादा कन्वर्सेशन वो अपने आप से करता है और किसी से नहीं करता। तो आप जब अपने जीवन में वो ऑटो करेक्शन लाते हो तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में बहुत सारी ब्लिस, हार्मोनी आपके लाइफ में आने लगती। तो आज अभी हम चलेंगे अपने मेडिटेशन की ओर। और आज हमारा मेडिटेशन है, हमने कई कई बार हमने बहुत सारे जन को ऐसे वर्ड्स बोल दिए जो हमें बोलना ही नहीं था। हम या तो गुस्से में हमने बोल दिया, या हमें हर्ट हुआ, या हमें हम फियरफुल थे, हमें नहीं समझ आया कि हम वो सिचुएशन में कैसे डील कर पाए। तो हमने बहुत सारे ऐसे जन, ऐसे रिश्ते हमने हर्ट करे, हमने करे या हमने नहीं करे, दूसरे ने करे। तो आज हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे। पहले हम पूरे दिल से हम वंदना आराधना करेंगे देवी का, फिर हम पूरी ब्लेसिंग्स हमारे बॉडी के अंदर हम रिसीव करेंगे, और एंड में हम क्या करेंगे, हम उनको फॉरगिवनेस देंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी, वो इंसान आपके सामने आएगा जो जिसके साथ भी आपका मतलब हार्मोनियस रिलेशन नहीं है, हम उनको विजुअलाइज करेंगे और उनको हम फॉरगिवनेस देंगे। फिर हम सिचुएशंस ऐसे विजुअलाइज करेंगे, उसमें भी फॉरगिवनेस देंगे। और अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज है, तो हम कई बार वो डिजीज के लिए बहुत अपशब्द यूज करते हैं, तो हम उसको भी हम फॉरगिवनेस देंगे। ओके, तो आज हम अच्छा, फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट क्यों है? कई बार हमें लगता है अरे मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैं क्यों फॉरगिवनेस दूं? मगर बिलीव मी, फॉरगिवनेस वो वाला इमोशन आपने कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के अंदर अटका के रखा है, और बिकॉज वो आपने अटका के रखा है, तो धीरे धीरे वो इमोशंस धीरे धीरे खराब होते हुए वो डिजीज में मैनिफेस्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब वो इमोशन रिलीज करते हो, फॉरगिवनेस देते हो, तो आपकी वेलबींग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पूरी हेल्थ को लेके, बीपी को लेते हुए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये मैं बहुत डिटेल में अपनी दूसरी क्लास में बताती हूँ, बट जस्ट टू टेल यू कि फॉरगिवनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि आप देखो, जब आप बॉर्न होते हो तो आप खाली आते हो, आप जब जाओगे तभी भी खाली जाओगे। तो ये सारे सिचुएशंस हमारे लाइफ के, और आपने क्या किया, उसको एक वो मालगाड़ी होती है ना, मालगाड़ी के जैसे हमने उसको भर भर के भर भर के भर भर के रखा है, और उसको भरे हुए ही चला रहे। तो वो सारे लोड्स हमें निकालना है और उसको अंडू करना है, खाली होना है। जब वो खाली होगे, लाइट करोगे, तब आप में वो बिल्कुल प्राणिक एनर्जी जो बोलते हैं ना, हाईएस्ट वाइब्रेशन, आओ वो आप फील कर पाओ, है ना। तो आज अभी हम चलेंगे अपने मेडिटेशन की ओर। मैं पहले म्यूजिक लगा लेती हूँ। Okay, so close your eyes, cross your hand, and keep it on your lap. Take nice deep breath. Nice deep breath. 1, 2, and 3. Take nice deep breath. अच्छी गहरी श्वास। Now visualize आपने अपनी आईज अपने नॉस्ट्रिल्स में रखी, और ये हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई ईच एंड एवरी
ब्रेथ को बहुत ध्यान से देखिए। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। नाउ विजुअलाइज माता रानी आपके सामने खड़ी है। उनका आकार बहुत बड़ा, बहुत विशाल। वो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आकार उनका। आप उनकी पूरी ब्यूटी को बहुत एडमायर कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा जिस तरह से अपनी मदर को एडमायर करता है, उसी तरह से आप अपनी देवी को पूरी तरह से एडमायर कर रहे हैं। Now visualize आपकी पूरी बॉडी पर ये गोल्डन वाइट लाइट देवी ने आपकी पूरी बॉडी के चारों तरफ ये ब्राइट ऊर्जा पूरी तरह से आपके चारों तरफ और शरीर के ऊपर ये रोशनी आ रही है। Now visualize आप एक डिवाइन वॉटरफॉल के नीचे बैठे हैं। ये बहुत डिवाइन लाइट रोशनी, ये पूरी डिवाइन लाइट आपके पूरे शरीर पर पड़ रही है। ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी पर और आपकी बॉडी के अंदर सब जगह ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा। विजुअलाइज एक स्पॉन्ज जिस तरह से सारी ये ब्लेसिंग्स को एब्सॉर्ब करता है, उस तरह से पूरी तरह से ये आपकी बॉडी ये ब्लेसिंग्स को फिल और फिल कर रहा है। विजुअलाइज ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र में पूरी तरह से फिल्ड और फिल्ड हो गई है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके क्राउन चक्र, ये ईच एंड एवरी सेल में ये डिवाइन लाइट और शाइन और रेडिएट कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी बहुत रिलैक्स रिलैक्स एंड रिलैक्स। आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स और रिलैक्स। आपका फेस पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। आपका नेक पूरी तरह से रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। आपकी अपर बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स एंड रिलैक्स।
से रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। नाउ विजुअलाइज ये पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा आपकी फोरहेड में आप पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये पूरी ब्लेसिंग्स आप रिसीव और रिसीव कर रहे हो। नाउ महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके फोरहेड का पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फील्ड और फील्ड हो गया। बहुत शाइन और रेडिएट कर रहा है ईच एंड एवरी सेल। नाउ विजुअलाइज आपका पूरा फेस ये डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फील्ड और फील्ड हो गया। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपका फेस का ये डिवाइन लाइट की ऊर्जा में बहुत शाइन और ग्लो कर रहा है। आपका पूरा फेस में ईच एंड एवरी सेल आपके आईब्रोज, आईज, नोज, चीक्स, माउथ, चिन, ईयर्स पूरी ईच एंड एवरी सेल में डिवाइन रोशनी में बहुत चमक रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका थ्रोट चक्र पूरी डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फील्ड और फील्ड हो गया। नाउ विजुअलाइज ईच एंड एवरी सेल पूरी तरह से डिवाइन लाइट की रोशनी में बहुत चमक रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी शोल्डर्स एंड हैंड, आपके शोल्डर्स और हाथ पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में पूरी तरह से फील्ड और फील्ड हो गया। आपकी पूरी हैंड एंड शोल्डर्स का ईच एंड एवरी सेल महसूस करो ये डिवाइन लाइट में बहुत शाइन और शाइन ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका चेस्ट एरिया पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की एनर्जी एब्सॉर्ब और पूरी तरह से फील्ड हो गया। नाउ विजुअलाइज एंड महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपकी चेस्ट एरिया में पूरी तरह से ये डिवाइन रोशनी में बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। आपका हार्ट बहुत खुश, बहुत हैप्पी, बहुत ही खुशी का लहर आप महसूस कर पाए। आपकी पूरी बॉडी में आप एक बहुत अद्भुत खुशी का लहर। नाउ
विजुअलाइज आपका मिड बॉडी एरिया पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में फील्ड हो गया। नाउ महसूस करो ईच एंड एवरी सेल, ये मिड बॉडी का एरिया पूरी डिवाइन लाइट की रोशनी में बहुत चमक रहा है और ग्लो कर रहा है। माता रानी आपको पूरी ब्लेसिंग्स, आपकी पूरी लाइफ में, बॉडी में ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग दे रही है। आप सारी ब्लेसिंग्स रिसीव और रिसीव कर रहे हो। नाउ विजुअलाइज आपका नाभि एरिया पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा में और फील्ड हो गया है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल डिवाइन रोशनी से बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से डिवाइन लव लाइट की ऊर्जा एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब कर रही है। विजुअलाइज आपकी लोअर बॉडी पूरी ये डिवाइन लाइट में ईच एंड एवरी सेल बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके दोनों पाँव ये डिवाइन ब्लेसिंग को पूरी तरह से फिल और फिल कर रहा है। महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके पाँव का, ईच एंड एवरी सेल, आपके थाइस, नी, फिंगली एंड फुट, ईच एंड एवरी सेल आपके पाँव ये डिवाइन लाइट में बहुत ग्लो और शाइन कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज आपकी पूरी बॉडी ये एक डिवाइन लव लाइट की एनर्जी पूरी तरह से फील्ड और फील्ड हो गई। नाउ महसूस करो ईच एंड एवरी सेल आपके बॉडी का, ईच एंड एवरी सेल डिवाइन रोशनी में बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। आपका ऑरा बहुत बड़ा, बहुत विशाल, बहुत ही रेडिएंट, आप बहुत ग्लो कर रहे हो। विजुअलाइज एक इमेजिनरी सर्कल अपने बॉडी के ऊपर, ये आपका प्रोटेक्शन कवच है। अभी हम अपना फॉरगिवनेस प्रेयर हम करेंगे, जिसने भी आपको बहुत दुख दिया या आपने बाय मिस्टेक के साथ जो व्यवहार हुआ, हम उनको विजुअलाइज करते हुए हम पूरी दिल से, मन से
उनको फॉरगिवनेस देंगे। अभी विजुअलाइज वो इंसान जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। आप कह रहे हो जाने या अनजाने मेरे से कोई भी ऐसी बात हुई या आपसे हुई तो मैं पूरी तरह से आपको फॉरगिवनेस देती हूँ और मैं आपसे पूरी तहे दिल से फॉरगिवनेस मांगती हूँ। चाहे ये एक इंसान हो या काफी इंसान, आपको केवल विजुअलाइज करना है वो आपके सामने आएंगे और आप उनको फॉरगिवनेस दे रहे हो और ले रहे हो। नाउ ऐसे कोई भी सिचुएशंस या इंसिडेंट जो आपको बहुत बुरा लगा था, ऐसे कोई भी इंसिडेंट को विजुअलाइज करो जिसमें आपको बहुत बुरा लगा था। पूरे दिल से, मन से आपको फॉरगिवनेस देना है। आपने वो इंसिडेंट से कुछ सीख अंडरस्टैंडिंग ली और वो इंसिडेंट केवल एक टीचर के माध्यम से आपको कुछ सिखाने आया है। पूरे दिल से फॉरगिवनेस दे दो ऐसे इंसिडेंट को। नाउ आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज अगर है तो पूरी तरह से वो डिजीज को, कई बार आप ऐसे शब्द यूज करते हो जो बहुत बुरे होते हैं। पूरी तरह से, पूरी दिल से, मन से आप फॉरगिवनेस दे। अभी हम सब का धन्यवाद दे रहे, सब चीज का, ये सृष्टि का धन्यवाद, हमारे एंसेस्टर्स का धन्यवाद, हमारे सारे गुरुज का धन्यवाद, सारे भगवान का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद, अपनी सोल का धन्यवाद, परम तत्व का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। अभी बिकम अवेयर, आप कहाँ पे बैठे, आपने कौन से कपड़े पहने, इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। आप जो भी इनहेल कर रहे हो, पूरा यूनिवर्स का प्यार आप इनहेल कर रहे हो। एक्सेल आप ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। आप अभी अपने हाथ रब करके अपने आईज पर रख सकते हो। Okay, so Rachna, you want to tell something? You're unmute. आज क्या हुआ अंजलि, मे बी आई वॉज सो टायर्ड या पता नहीं, मैं पूरी लॉस थी। जब फॉरगिविंग वाला सेशन आया तभी आपकी आवाज पूरा टाइम आ रही थी मेरे कान में, पर पता नहीं, आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग इन द मेडिटेशन। अच्छा, okay.
So many times what happens is even when you want to follow, your mind doesn't allow it. Maybe you were thinking on something. Were you thinking on something, or is it like मतलब normally क्या होता है when मतलब normal day we are doing so much work, right? तो जब आप वर्क करने के बाद में आप बैठते हो तो वो चीजें लिंगर करती रहती है अपने माइंड के अंदर. तो आज मैंने प्रॉब्ली वो समर्पित नहीं कराया. एंड एवरी डे आई डू दी समर्पित. तो फिर समर्पित से क्या था, यू आर गिविंग अ कमांड, यू आर डूइंग इट. तो प्रॉब्ली दैट इज व्हाई प्रॉब्ली यू कुड नॉट डू इट और समथिंग. No, maybe I don't know. Maybe my mind was that tired because I am having some issue with my leg. I told na earlier also. So thinking of that, maybe I'll do it again tomorrow. Definitely. Yeah, sure. So you have some pain in your leg or like what? Yeah, pain in the leg. आज MRI भी करके आए हैं, but उसमें भी कुछ आया नहीं. So is it like a knee pain or like what injury or something? No. Calf muscle pain है जो on exertion पूरा ऊपर तक आता है. ऐसा है. So I have a healing meditation which I'll send you and you can do it and see. तो मैंने बहुत जनों को जिनको भी भेजा है, they could experience that lightness. So probably you can do that while even lie down you can do. Not necessary आपको बैठना है, आप लेटे लेटे भी कर सकते हो अपने free time पे. Yeah. Okay. Thank you. Sure. Thank you so much. Welcome. How are you liking the session or what's your like feedback? Definitely loving them. I told Shweta also it is really divine experience. Okay. So she did send me the feedback and I was like, okay. So she said, Rachna, I don't know कौन से batch पे join कर रही है. तो मैंने बोला, oh, Rachna Malpani in the, because your surname is quite a prominent surname. So that is how I remembered. I said, yeah, she's in the night batch. Because I have a morning batch also, which is like 6:30 to 8. So okay. Yeah, so that's a very long meditation. तो जिसने कभी किया नहीं है तो उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा करके. तो ये वाला is like a 25 maximum 25 minutes which you can do. Last year I missed your class. Miss, you had shared, Shweta had shared that with me, but last year I missed it. That's why I asked her for the thing कि Miss Anjali इस साल नहीं ले रही है क्या? So Navratri, तो I feel my existence is because of Mambika. Otherwise, so that is my pure bhakti for every Navratri. So चाहे कहीं भी हो, I will do this Navratri for sure. Thank you so much. Thank you so much. It's a blessing for us actually. Yeah, no, it's blessing for everybody. In fact, she's guiding all of us. We are not listening to her. That's a different story. Correct. Thank you so much. Harini, you want to say anything? Okay, I am very happy to join this program. Thank you, Harini. Thank you so much. And thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much. Arun, while driving, don't do the meditation. It is not good. You should not do while driving. So maybe I'll share you the link and then you can do it in the night. I know it's a time difference, but while driving, what happens when you listen to the meditation music? It is very calming. It is very relaxing. And when you're driving a vehicle, you're very active. So it's like a contrast thing. And so for your safety, I want that you can listen to the story and the meditation is what you can do afterwards. Yeah? Done? It probably isn't work now. Okay. Bye, girls, everybody. We'll meet up tomorrow, same time. Okay. Bye. Take care. Bye.